analysis of geography and environment. Exactly what's the topic UPSC is asking, what is your syllabus and how you will prepare for the subject. Before starting any of the subject, you need to do these kind of the analysis ताकि आपको पता लगे how you are preparing for the examination. ऐसा stark difference नहीं होना चाहिए आप कुछ पढ़ रहे हैं और examination में कुछ और आ रहा है. That should be on the same line. So first सबसे पहले आपका काम होना चाहिए you should learn the syllabus. तो exactly you should between the line में ही पढ़ना है, हमें syllabus के beyond नहीं जाना है. So the first line of your syllabus is saying the salient feature of the world and the physical geography, distribution of the natural resources across the world, including the South Asia and the Indian subcontinent. The specific they are focusing on the South Asia and the Indian subcontinent. और जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं, these questions specifically from the Asia and the Indian subcontinent से ही questions आए हैं. Next is the factor responsible for the location of the primary, secondary and the tertiary industry. There are various questions has been asked on these three industries, primary, secondary and tertiary. वो हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं. From the tertiary industry only one question अभी तक पूछा गया है from the UPSC history. Then the part of the world including the India. जहां पे भी लिखा है including India means you will focus on the Indian perspective more than the world perspective. Next is these two topics also given, important geophysical phenomena like the earthquake, tsunami, volcanic activity and the cyclones. Questions भी इन्हीं पे पूछे गए हैं, except one more addition is the landslides, जिस पे ज्यादा questions आए. Landslides is the another addition in this one, जहां से questions ज्यादा पूछे गए हैं. Next is the geographical features and their locations, changes in the critical geographical features, water bodies and the ice caps, flora, fauna. मीन्स इसमें आपको नॉर्मल ज्योग्राफी ग्लेशियर्स के बारे में आप पढ़ते हो तो सारी चीजें वाटर बॉडीज के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में. दीज आर द आउटलाइन ऑफ योर सिलेबस. मीन्स ओनली द 5 लाइंस आर मेंशन इन योर सिलेबस. उन लाइंस के अकॉर्डिंग वी नीड टू रीड आवर बुक्स. ऐसा नहीं है कि पेज टू पेज जाना, बिकॉज द प्रीलिम्स इज डिफरेंट एंड द मेंस इज डिफरेंट एंड देयर इज सो मच रिपीटेशन इन द मेंस एग्जामिनेशन दैट यू शुड फोकस ऑन एग्जैक्टली पूछता क्या. लेट्स सी द क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या क्या पूछा है. सबसे पहले वी डिवाइडिंग द ज्योग्राफी इनटू द मल्टीपल सब हेडिंग पार्ट्स की. सोशियो इकोनॉमिक इशू से क्या पूछा है, वाटर बॉडीज से क्या पूछा है, वाटर रिसोर्सेज से क्या पूछा है, फ्रॉम द अर्थक्वेक, फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री, फ्रॉम द एनर्जी, what kind of the question has been asked. So you will find out some of the keywords there. उसके beyond वो गए ही नहीं है आज तक. So you should focus on those keywords first. Exactly if we are reading the socio-economic issue, so what kind of the keyword we should focus on. तो किस तरीके के keywords पे हम focus करेंगे. So the first is the socio-economic issue. The first topic, first dimension is the socio-economic issue. So you can write about these dimension. File I will share. In the socio-economic issue, आज तक only the 4 question has been asked from the UPSC. They are asking the social problems and the speedy process of the urbanization. Means urbanization की वजह से जो issue create हो रहे हैं, और faster urbanization या urban floods की हम बात करते हैं, those kind of the issue, the social problems, urbanization and problem related to them. Then formation of the IT hubs and problems due to the IT hubs. The same kind of dimension, but topic change हुआ. Third, development of the IT industries and the socio-economic problems. Almost a similar question after the 4 years it's repeated, but the dimension again the same. Development of the industry and the socio-economic implication of that industry. Then the growth of the tier 2 cities and the rise of a new middle class, means the rise of the new problems here. You look at industry problems and the growth of the cities and the problems. It means the second part of the question is always focusing on the problems and the first part is focusing on the how they are developed. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है whenever you are focusing on the socio-economic issues type of the question in geography, तो उसके according you can do that. Next पे आते हैं. Next is the pollution. On the pollution only a single question has been asked आज तक, that is on the air pollution as a serious problem. It means the air pollution and the environmental problem both are linked here. So accordingly you will focus on the topics. Pollution either can be the air pollution, maybe the water pollution and some kind of the other pollution as well. नेक्स्ट डायमेंशंस पे आते हैं. अर्बन डाइजेस्टर्स का है नेक्स्ट डायमेंशन डिजाइन किया गया. जिसमें स्पेसिफिकली द फोकस ऑन द हीट आइलैंड्स इन अर्बन हैबिटेट्स, मेजर सिटीज मोर वल्नरेबल टू द फ्लडिंग, स्मार्ट सिटी एंड द रेमेडियल मेजर्स. तीनों में सेम डायमेंशंस है. फ्लडिंग, देन द सिटीज, देन द मेजर्स. व्हाट वी आर गोइंग टू टेक द मेजर्स. मेजर सिटीज वल्नरेबल हैं तो उसको डिस्कस करना है. वी विल आल्सो सजेस्ट मेजर हियर. हीट आइलैंड्स एंड द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्यों बन रहा है उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. द सेम डायमेंशन इन ऑल दीज 3 क्वेश्चन फिर से पूछा उन्होंने.
So whenever you're focusing on the urban disasters, you should cover these dimension in your notes, these dimension in your answers. इसके beyond dimensions नहीं आएगा. एक दो dimension होगा that you can focus on, but mostly the question will be appear in this form or the some of the another modified form. इसके beyond question नहीं आता है. Next पे आता है transport. Only the one question अभी तक पूछा गया है, efficient and the affordable transport. Direct question पूछा गया, urban mass transport key to the rapid economic development. ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मिक्स करके दिस इज द क्वेश्चन ऑन द ज्योग्राफी. नेक्स्ट पे आते हैं अर्बन पॉलिसी, द गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड अर्बन पॉलिसी. स्मार्ट विलेज एंड द रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ एंड द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम. थीम, द अर्बन सिटीज, द रूरल इंटीग्रेशन, द स्मार्ट सिटी एंड द स्मार्ट विलेजेस. सब एक थीम का ही पार्ट है. They are focusing on the same kind of the thing. जितने भी थीम हम देखेंगे, they are focusing on the same kind of the dimensions. So your note should have all these dimensions. इसके beyond नहीं जाना होता है. And you can write these dimensions in the 150 words. उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता. So but you should focus on the limited content, but the enriched content. You can focus on the data. You can focus on the any of the case study in these questions. Everybody know about the smart city program. हर किसी को पता है. But what you are going to write different from others? वो डेटा रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी का इंप्लीकेशन रहेगा. एनी ऑफ द विलेज इन द इंडिया इज द स्मार्ट विलेज, वो मेंशन करना होगा आपका एग्जांपल. दैट विल बी द डिफरेंट थिंग देयर. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनन. दिस इज द 2023 क्वेश्चन, द मॉनसून कॉल्ड द पुरवैया. पुरवैया ये सिंपल रीजनल लैंग्वेज से लिंक करके मॉनसून को पूछा गया है, नथिंग एल्स. बिहार में पुरवैया स्पेसिफिकली विंड को बोलते हैं, उससे लिंक करके पूछा गया था. अदर फिनोमिनन्स लाइक द लैंडस्लाइड्स, bring out the more frequent landslides in the Himalayan. अब यहाँ पे देखो, theme is the Himalaya, Himalaya landslides, Himalaya landslides, landslides, Himalaya and the Western Ghats. 3 क्वेश्चन 3 डिफरेंट ईयर्स में 13, 16, 21. अगर मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए होते, if I am having the dimension in my notes, there is no need to think on it. 4-5 मिनट में आंसर लिख दोगे आप लोग. You need to be identify what they are asking and how we are making our notes from the UPSC itself. आप लोगों को हमेशा एक ये डाउट रहता है कि क्या पढ़ना है, what to read. UPSC is giving the hint in the mains paper what to read, which source to follow. You can directly find these dimension on the internet पे भी मिल जाएगी. आपकी कुछ बुक्स में भी है, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स यू कैन फोकस ऑन रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स. इतने सारे आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पे सारी चीजें फोकस्ड है. एंड स्पेसिफिकली क्यों वेस्टर्न घाट्स और लैंडस्लाइड्स के क्यों ही पूछा है हिमालयन, बिकॉज बोथ आर द मोर वल्नरेबल इन एरिया इन द कंट्री. देयर वाज अ रिसेंटली 2-3 months बिफोर देयर वाज अ आर्टिकल रिलेटेड टू द लैंडस्लाइड्स. तो वहां पे एक बहुत अच्छा फैक्ट गिवन था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं. अगर आप ये चीज वहां मेंशन करोगे, दिस इज अ यूनिक फैक्ट दैट यू नीड टू बी मेंशन इन योर आंसर्स व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द लैंडस्लाइड्स, जबकि फोकस पूरा हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स पे ही है. नेक्स्ट पे आते हैं द साइक्लोन, earthquake and the volcanoes. These are the physical phenomenon. Tropical cyclone mostly hit the eastern part of the country. The tropical cyclone and the east coast of India. Tropical cyclone, Bay of Bengal, again the east coast of India. Color-coded weather warnings and the cyclones. Volcanic eruptions and the regional environment impact, climate change and the food security. ये एक नया dimension है. अब यहाँ पे dimensions देखो. क्लाइमेट चेंज को फूड सिक्योरिटी से लिंक कर दिया स्पेसिफिकली. देन हियर दे आर फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ दिस थिंग्स. देन दे आर फोकसिंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द ज्योग्राफी की कैसे आता है, क्या क्या साइंस दिए जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द साइक्लोन्स. देन हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग द specifically to the cyclone, all these 4 questions on the cyclone, if you are preparing for the cyclone, these 4 dimensions should be there ना. साइक्लोन कैसे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है, आप सोचोगे नहीं कि कैसे कर रहा है. यू शुड हैव डेटा देयर कि कैसे वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा. तो डेटा लिखना जरूरी है. अदरवाइज आप लिखोगे कि लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, पूरा स्क्रैप हो जाता है. बट व्हाट्स द डेटा यू दैट यू कैन सपोर्ट योर आंसर विद द डेटा. इफ यू कैन राइट द एनी ऑफ द केस स्टडी रिलेटेड टू उड़ीसा, रिलेटेड टू तेलंगाना, वहां की वेस्ट बंगाल की केस स्टडी लिख सकते हो, ये कितना इंपैक्ट हुआ है, कितना जीडीपी को अफेक्ट करता है. दैट विल बी योर मार्क्स एड ऑन इन द पेपर. नहीं तो जनरल आंसर तो सबके पास है, द साइक्लोन इज इंपैक्टिंग द फूड सिक्योरिटी, बट हाउ, व्हाट्स द डेटा सपोर्टिंग इट. इस तरीके से आपको डायमेंशंस बनाने होते हैं व्हेन एवर यू आर रीडिंग एनी ऑफ द कोई भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यू शुड कवर द डायमेंशंस ऑफ द यूपीएससी जो आज तक पूछे गए हैं. नेक्स्ट पे आते हैं डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन पे आज तक 2 बार क्वेश्चन पूछा गया. मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट्स योर बेसिक ज्योग्राफी.
देन द डिग्री एंड द नॉर्थ ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, क्यों वो वेस्टर्न साइड में ही है, 20 to 30 डिग्री के बीच में ही क्यों है? इट इज ऑल्सो लाइक फ्रॉम योर बुक्स डायरेक्टली, क्यों उस रेंज में ही होता है स्पेसिफिकली। देन द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, नो क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, की हर जगह ही डेजर्टिफिकेशन है। जब आप इसको मेंशन करोगे यू आर गिविंग द हिंट ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि 20 to 30 पूरा वर्ल्ड में है ना, तो आप हर जगह का एग्जांपल दे रहे हो डेजर्टिफिकेशन में, इसी से ही सेकंड क्वेश्चन बिल्डअप हो गया। इट हैज नॉट हैविंग क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, इट्स नॉट ओनली द इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे डेजर्ट्स है। अब इसमें ये भी देखना है डेजर्टिफिकेशन, आप सिर्फ हॉट डेजर्ट्स को नहीं लिखोगे, यू शुड ऑल्सो मेंशन द कोल्ड डेजर्ट है, दोनों के बारे में आप बात करोगे। देन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, द सिंपल लाइक जो मिशन है हमारे जूनो मिशन एंड द IRNSS, तो यू शुड फोकस ऑन द रिसेंट मिशन जो भी इसरो और स्पेसिफिकली नासा ने लॉन्च किए हैं। इसरो और नासा मिशन को आप देख सकते हो स्पेसिफिकली। अच्छा, डायरेक्ट मिशन वो पूछ लिया जाता, लाइक द IRNSS इन 2017 में लॉन्च हुआ था, 18 में क्वेश्चन आ गया था। तो स्पेसिफिकली यू कैन फोकस ऑन द चंद्रयान का स्पेसिफिक देख सकते हो कि कहाँ चीजों पे है, तो वो फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नाउ द ग्लेशियर एंड द वाटर बॉडीज। GLOF, ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड्स, स्पेसिफिकली न्यूज में हमेशा रहता है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द हिमालयन रीजन। रिसेंट में एक न्यूज थी अभी, इन वेनेजुएला देयर इज अ ग्लेशियर, नाम याद नहीं है अभी शायद मुझे, उसको अभी स्टेटस हटा दिया है ग्लेशियर का। तो अभी इस तरीके का डेटा फैक्ट, तो वेनेजुएला में ग्लेशियर था, ड्यू टू द क्लाइमेट रीजन बहुत ज्यादा मेल्ट हो गया, थिकनेस नहीं है, नाउ इट द वेनेजुएला इज नॉट हैविंग एनी ग्लेशियर्स। तो वो एक मेंशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड आता है क्लाइमेटिक बाउंड्री के बारे में पूछा जाता है, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है ग्लेशियर्स को, तो आप इस तरीके का एक एग्जांपल केस स्टडी मेंशन कर सकते हो। तो ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिंकिंग हिमालयज एंड द ग्लेशियर्स। लैंडस्लाइड्स पे भी हिमालय पे ही फोकस है, एंड द ग्लेशियर्स भी हिमालयन रीजन पे ही फोकस कर रहा है। क्रायोस्फीयर इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, Himalayan glacier have a far-reaching impact on the water. Implication on the water bodies and the urban land use. Environmental implication, reclamation of the water bodies. इस theme का question नहीं है. It's like the water conservation theme. Then the melting of the Arctic ice and the glacier, and the crisis of availability and access of fresh water. These two are the same theme question. ये वाला और ये वाला water conservation के. Other three are related to the glacier and the similar kind of dimensions has been asked. तो इससे आप अपना सिलेबस को ना कंसाइज कर सकते हो। यू कैन फोकस ऑन सम सर्टेन फैक्ट, सर्टेन डायमेंशंस पे आप लोग फोकस करना है, और उससे ही क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन पे क्या क्या पूछा गया, जो आपका बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, जो आप एनसीईआरटी से भी लिख सकते हैं, या फिर जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वर्जेंस, हाउ इट्स अफेक्ट द वेदर, आउटकम ऑफ एल नीनो। कोई भी आप फिनोमिनन पढ़ते हैं, हाउ इट अफेक्ट द क्लाइमेट, हाउ इट अफेक्ट द वेदर, उसके साथ अटैच होता है, तो वो आपको हमेशा पढ़ना। आउटकम ऑफ द एल नीनो and the temperature inversion affecting the weathers. El Nino effects के बारे में बताना है। How far do you agree the behavior of the Indian monsoon being changing? The troposphere and the determined weather. Troposphere का role in weather determination. Air mass and the macroclimatic change. Air mass का concept क्या है? How it's affect the climate change. Characteristics of the monsoon climate and how it's affect the world population. जितने भी phenomenon पूछे हैं, हर किसी के साथ effect पूछा गया है। So you are preparing any of the phenomenon, you should focus on the effect on the Indian level as well as the world level. तो वहां पर मान लो कि आपके इंडिया के किसी स्पेसिफिक रीजन में ज्यादा इफेक्ट है, स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा इफेक्ट है, या फिर सेंट्रल इंडिया महाराष्ट्र वाले रीजन्स में ज्यादा इफेक्ट है। यू कैन मेंशन द केस स्टडी ऑफ एनी ऑफ द विलेजेस देयर कि मॉनसून की वजह से यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा। स्पेसिफिकली एट द वर्ल्ड लेवल ऑल्सो, कि जहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉट कंडीशन हुई ड्यू टू द क्लाइमेट्स, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन, तो वहां का भी आप एग्जांपल से कोट मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्या है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स, मेंटल प्लूम्स क्या होता है, एंड द सर्कमपैसिफिक जोन का कैरेक्टर्स क्या है, सब बेसिक्स ऑफ द ज्योग्राफी, सिंपल ज्योग्राफी क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट द माउंटेन रेंजेस, आइलैंड्स एंड द अदर लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो वर्ल्ड फॉल्ट माउंटेन सिस्टम्स क्या है, then the formation of thousands of islands in the Indonesia. This is the world geography, जहां से world geography questions आए हैं। Restored from the negative impact of development initiative, mountain ecosystem, agreement mountain ranges and the explain their impact on the local weather, characteristics and the type of the primary rocks. तो in mountain there are 5 dimension अभी तक पूछा उन्होंने। Fold mountains के बारे में पूछा, association between the global distributions के बारे में पूछा है, देन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया क्यों बनता है उसके बारे में पूछा है,
देन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, माउंटेन इकोसिस्टम के डेवलपमेंट इनिशिएटिव में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पूछा है। देन एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशन, माउंटेन्स का लोकल वेदर कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट्स है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, यहाँ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, यहाँ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट या नेचुरल इम्पैक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे फिर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट पूछा गया है। माउंटेन्स एंड द क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन द स्पेसिफिक रीजन्स पूछा गया। तो यू शुड फोकस ऑन, व्हेनेवर यू आर रीडिंग ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स के भी बारे में पढ़ते हो, तो यू शुड फोकस ऑन द जियोफिजिकल फिनोमिनन कि फॉल्ट माउंटेन्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो जियोफिजिकल फिनोमिनन के बारे में। इसके साथ साथ हाउ दे आर इंपैक्टिंग द क्लाइमेट्स, हाउ दे आर इंपैक्टिंग द वेदर कंडीशंस, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में मेनली थ्री टाइप्स है, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज एंड टर्शियरी रिसोर्सेज। तो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, रिसोर्स पोटेंशियल्स क्या होता है, किसी के अंदर नहीं आता, वी कीप इट आउटसाइड कि रिसोर्स पोटेंशियल है क्या स्पेसिफिकली। नाउ वी विल फोकस ऑन द वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज हो सकता है, एनर्जी रिसोर्सेज हो सकता है, ओशियन रिसोर्सेज हो सकता है। रिसोर्सेज इज अ वेरी good theme for the UPSC. Every year, two questions from the resource you will find out. Even it's the energy resource, even it's the water resource, even it's the ocean resources. So from the water resources, environmental impact of the coal minings. What is the water stress? How it is differ regionally? Fresh water resources and the water scarcity. अब यहाँ पे देखोगे वाटर स्ट्रेस एंड वाटर स्कैरसिटी को हम ऑलमोस्ट डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, बट द लेवल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज सेम। स्कैरसिटी, स्ट्रेस, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे कैसे डिफर करता है, सिमिलर पैटर्न में आंसर को अलग तरीके से लिखते हैं बस। डायमेंशन विल बी द सेम बट द पैटर्न विल बी द डिफरेंट फॉर राइटिंग द आंसर्स। तो ये चीज आप देखोगे। देन द माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट एंड द वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एरिया, तो वाटर कंजर्वेशन का क्वेश्चन है डायरेक्टली। Management of the land and water resources, again the conservation of the land and water resources. So conservation theme, conservation of water, conservation of land. No formation of the delta by the river of the Western Ghats, it's a direct geography question जो आपके बेसिक से पूछा गया है। Then the interlinking of river was in the news, तो interlinking का impact क्या है, क्या क्या पूछा जा सकता है। Then again the water scarcity यहाँ पे पूछा गया, depleting of water resources, एक डायमेंशन यहाँ पूछा गया, एक डायमेंशन यहाँ पूछा गया। In each theme, we are looking at repetitions of the themes, repetition of the type of dimension in the UPSC. So whenever you are focusing on the questions, आपको डायमेंशन फोकस करना है। डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज मींस वाटर स्ट्रेस के बारे में ही बात हो रही है, वाटर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी के बारे में बात हो रही है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, हाउ द डिफरेंट रीजन्स आर इम्पैक्टेड इन इंडिया। स्पेसिफिकली जब आप जीएस की बात करते हो तो आप सबसे पहला इंडिया पर्पज के, इंडिया पर्सपेक्टिव में लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में जाएंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी इज द मेजर आपका सिलेबस में आता है। सिमिलरली द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर उस टाइम पे बहुत न्यूज में चला था केन बेतवालिंग की वजह से, दैट वाज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो अभी इस पे ऐसा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आने वाले, देयर कैन बी द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं एनर्जी। एनर्जी आपके प्रीलिम्स में भी एक बहुत मेजर थीम था। अभी आपने अगर 2024 आपने दिया है 2024, तो एनर्जी से ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पूछे गए हैं। एनर्जी एज अ थीम, उसका क्वेश्चन इकोनॉमी में भी है, उसका क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में भी है, उसका क्वेश्चन आपका कोई पॉलिसी स्कीम आई है उसमें भी है, और मिसलेनियस में भी एनर्जी थीम एज एनर्जी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो रिजर्व ऑफ द शेल ऑयल गैस, टैपिंग ऑन द रिसोर्सेज डज नॉट अपीयर। इंडिया के पास रिजर्व है बट द पॉलिसी इंप्लीकेशन इज नॉट गुड। स्कैरसिटी ऑफ द फ्यूल रिसोर्सेज, एटॉमिक गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया। देन अगेन द गवर्नमेंट पॉलिसी, कैसे फॉसिल फ्यूल का स्कैरसिटी ग्रो हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ऑयल इन द आर्कटिक सी, इमेंस पोटेंशियल ऑफ द सोलर एनर्जी, uneven distribution of the mineral oils, potential of the wind energy in India. Even they are asking the shale oil gas, fossil fuel के बारे में पूछा है, ऑयल के बारे में पूछा है, सोलर एनर्जी के बारे में पूछा है, मिनरल ऑयल के बारे में पूछा है, और विंड एनर्जी के बारे में पूछा है। ऑल इन इंडिया डेवलपमेंट की स्टेज पे है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, किस एरिया में स्कैरसिटी है, कहाँ पे हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, टैपिंग क्यों नहीं हुआ अभी तक, व्हाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग देम। तो वो सारे डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। इसके बियॉन्ड यूपीएससी अभी नहीं गया और ना ही जाएगा। दीज आर द मेजर थीम जो आप एनर्जी के अंदर पढ़ सकते हैं। अभी जैसे ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, तो लिथियम आयन रिसोर्स की बात हो रही है, तो यू शुड लिंक दोज डायमेंशंस विद द ग्रीन एनर्जी, विद द रिन्यूएबल एनर्जी, विद द हाइड्रोजन एनर्जी के साथ यू विल लिंक इट अप। नेक्स्ट पे आते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, शुड रीड, डेटा निकालो वहां से क्या इंडिया में स्टेटस है फॉरेस्ट का।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, बेसिक ज्योग्राफी, जहां जहां क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेजिटेशन भी चेंज होता है अकॉर्डिंगली, बेसिक क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसोर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से डायरेक्टली पता लग जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं ओशियंस। ओशियन में बेसिक्स ओशियनिक सैलिनिटी के बारे में पूछा है एंड मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ द ओशियनिक सैलिनिटी। अब जब आपको पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में तो सैलिनिटी वाला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है, वाटर टेम्परेचर पे इम्पैक्ट क्या होता है, डेप्थ में सैलिनिटी ज्यादा है कि ऊपर की साइड ज्यादा सैलिनिटी है, फिश पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, वाटर करंट्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो सारा पूछा जाता है। डेड जोन्स, व्हाट आर द डेड जोन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओशियनिक करंट, वाटर मास डिफरेंस इम्पैक्ट इन द मेरीन लाइफ, तो ओशियन करंट का मेरीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। Depletion of mangroves is like the environmental dimension is added to the oceans. Depletion of mangroves and importance to maintaining the coastal ecology. तो coastal ecology को कैसे maintain करते हैं mangroves? Impact of global life on the coral lives. Global warming on the coral lives. Then the resources of the oceans, origin of the ocean currents and how they influence the climate, fishing and the navigation. ओशियन करंट को रिसोर्स से जोड़ा गया, क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन के रिसोर्स से। सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो ओशियनिक सैलिनिटी, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, आप यहाँ पे एज अ रिसोर्स के ऊपर भी इफेक्ट डालोगे कि सैलिनिटी एज अ फिशिंग इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट है। इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ, यहाँ पे भी मैरीन लाइफ पूछा है और यहाँ पे भी फिशिंग के बारे में पूछा है। तो मैरीन लाइफ के आप ज्यादा फोकस करोगे, इवन द कोस्टल इकोलॉजी, मैंग्रोव ऑन द कोस्टल इकोलॉजी पे क्या क्या इफेक्ट डालता है। तो आपको एनालिसिस सिर्फ पढ़ना नहीं है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आया, ठीक है, एज अ थीम 6 क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन है। जब आप ओशियंस पढ़ते हैं तो सातों डायमेंशन तो कंपल्शन है पढ़ना ही है। इसके अलावा ओनली 1 और 2 डायमेंशन रिमेन्स। हाईएस्ट चांस द क्वेश्चन विल रिपीट फ्रॉम दीज 7 डायमेंशंस। 10% चांसेस जो बच गए डायमेंशन उनसे आएगा। तो यू आर ऑन द सेफर साइड, आपको दोनों पता है, आपके नोट्स में ही सारे डायमेंशन तो है, यू आर फोकसिंग ऑन द न्यू डायमेंशन एज वेल। तो उस टाइम पे क्या चांसेस होते हैं, इन द पेपर 20 क्वेश्चन होते हैं, यू आर कंफर्टेबल विद द मोर देन 16-17 अगर आप इस तरीके से जाओगे। 2-3 क्वेश्चन ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स होंगे जो आपको वहीं पे बैठ के वहीं पे सोच के लिखने होते हैं, पर उनको लिखने के लिए टाइम यू विल सेव व्हेन यू हैव अ रेडीमेड आंसर फॉर द अदर 15। रेडीमेड आंसर मींस आपके पास इंट्रोडक्शन रेडी है, केस स्टडी रेडी है, डेटा रेडी है, यू हैव सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंक्लूजन रेडी है, देन ओनली यू कैन राइट इन द विद इन द टाइम लिमिट। उसके स्ट्रक्चरल क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे या सिर्फ की पॉइंट्स लिखोगे, ओनली एग्जांपल मेंशन करोगे, किस तरीके का डायग्राम बनाओगे, रीजनल मैप्स कैसे बनाओगे, तो सारा प्रैक्टिस पहले से ही हो जाना चाहिए whenever you are writing for the means। नेक्स्ट आते हैं अब इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या पूछा, सेकेंडरी से क्या पूछा और टर्शरी से क्या पूछा। फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री तो मेजरली फोकस किया गया प्राइमरी और सेकेंडरी पे, टर्शरी पे आज तक एक ही क्वेश्चन आया। प्राइमरी इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज द कॉटन टेक्सटाइल, sugar mills in the southern states, iron and steel industry, special distribution, Gondwana lands and the mining industry, फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ओशियंस वाले में पूछा और फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि मॉनसून का भी यह है, एल नीनो इंपैक्ट भी है फिशिंग इंडस्ट्री पे, तो सारा आपको देखना होता है। टी इंडस्ट्री, टी गार्डन्स एंड द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसके बियॉन्ड तो आपके पास इंडस्ट्री भी नहीं है। जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हो आप शुगर में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखो तो शुगर मिल, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ते हो, कोल इंडस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ते हो, देन द फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, प्लांटेशन इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हो एंड द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हो। इसके बियॉन्ड तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, तो हाईएस्ट चांस इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होकर आने वाली है। तो यू शुड फोकस ऑन कि लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर में कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है, तो उस इंडस्ट्री का आप पूरा अच्छे से डायमेंशन बना लो। बाकी सारे नोट्स में आपकी ये आंसर हो जाना चाहिए। यू आर मेकिंग योर नोट्स, योर नोट शुड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर लोगे। नेक्स्ट पे आते हैं द सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्पेशल पैटर्न, वहां पे कोर इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे स्पेशल पैटर्न के बारे में पूछा गया। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री तो वही है, पेट्रोलियम वाला हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, रीजनल सोर्स बेस्ड पे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री मेंशन कर सकते हैं, कौन कौन सा होता है। स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, तो आपको डायमेंशन वो देखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू द टर्शियरी इंडस्ट्री, ओनली द वन क्वेश्चन, अराइजिंग आउट और डेवलपमेंट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या हुए फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री। ये हमने देखा था सोशियो इकोनॉमिक वाले पार्ट में भी। नाउ दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द टर्शियरी इंडस्ट्री एज वेल। टर्शियरी इंडस्ट्री से क्या क्या पूछा गया।
नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोस्पेक्ट ऑफ द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया, इंडस वाटर ट्रीटी, साउथ चाइना सी एंड रिसोर्सेस, इंटरेस्ट इन द रिसोर्सेस ऑफ द आर्कटिक रीजन्स, स्ट्रेट एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड्स। अभी देखोगे तो ओनली द ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड्स, ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया। अदरवाइज साउथ एशिया रीजन और इंडियन रीजन से ही क्वेश्चन है सारे। जो ब्रैकेट में दो कीवर्ड्स लिखे थे उनका इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में कि वो ही कीवर्ड्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट पे आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दो पेपर में आता है, GS1 एंड GS3। GS1 इज द डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड द GS3 इज द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है। इन द GS1 द ग्रीन रिवॉल्यूशन in the bypass the eastern region despite of the fertile soil and good availability. Again, there is a higher chances on the question of the green revolution because of death of the MS Swaminathan और MSP का बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो there is a higher chance कि green revolution, ever green revolution के बारे में पूछा जा सकता है। Mention the advantage of the cultivation of pulses and the international year of pulses, तो millets पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स गया है और मिलेट्स पे बहुत ज्यादा बात हुई है। Define the blue revolution, explain the problems and strategy for the piscicultures. So you can see the fishing industry importance again. The blue revolutions and the strategy of pisciculture. From the net importer in the 1960, India has emerged as the net food exporter in the world. So green revolution का indirect question है. It's a rephrased question of the green revolution again. एग्रीकल्चर में कहाँ पे फोकस करना है, जहां से स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर, उसके बियॉन्ड नहीं पूछ रहा है। उसके बियॉन्ड जो पूछेगा कि बिफोर एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री, ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ना पोस्ट एग्रीकल्चर, वो इकोनॉमिक पार्ट आता है, वो ज्योग्राफिकल पार्ट में नहीं पूछा जाएगा, वो इकोनॉमिकल पार्ट GS3 में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक्स, द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। इंडिया कंसीडर्ड एज ए सबकॉन्टिनेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, पोटेंशियल ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। तो दीज आर द डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन। डेक्कन ट्रैप के आपको रिसोर्स बताने हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी डैमेज हुआ है ड्यू टू द टूरिज्म एंड इंडियन कंसिडर एज ए सब कॉन्टिनेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन कि क्यों कंसिडर किया जाता है। नाउ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का सिलेबस में सिर्फ एक ही लाइन है, दिस इज द लाइन इन द एनवायरमेंट सिलेबस। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। ठीक है, तो यही है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो इसमें भी 5 ही डायमेंशन पूछी है, दीज आर द गिवन, बट 5 ही पूछे आज तक। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। व्हाट इज द वेटेज ऑफ द एनवायरमेंट क्वेश्चन? 3 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 40 मार्क्स, 15 15 10 और 10 10 15 35 टू 40 मार्क्स का ही आता है। और ज्योग्राफी 100 टू 110 मार्क्स का आता है GS1 में। तो दोनों को मिला दे तो 150 मार्क्स बनता है आपको ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट। अगर DM को भी ऐड कर देंगे तो 175 मार्क्स का बनेगा। सो इन द इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स, the first dimension of the environment is the international mechanisms. So in the international mechanism, carbon credit and the UNFCCC के बारे में पूछा है। Ramsar concept of wide use, COP26 of UN climate change and the International Solar Alliance, Global Air Quality Index and the World Health Organization report, 26th Conference of Party and the UNFCCC, Gothenburg Protocol of the 1999, क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997, ये सब पूछा गया था क्योंकि 25 इयर्स हो गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। IPCC एंड द ग्लोबल सी लेवल राइज। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल लेवल पे ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दोज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। स्पेसिफिक किस चीज पे फोकस किया गया है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सिमिलरली यू कैन फोकस ऑन द COP28, COP28 में क्या क्या चीजें हुआ है और स्पेसिफिक किस चीज पे फोकस किया गया है, और एनी ऑफ द these COP completing the 5 10 15 20 25 years that become the more important। तो उससे क्वेश्चन रिपीटिशन के चांसेस हो जाते हैं। तो जितने भी आप देखोगे UNFCCC पूछ चुका है, WHO पूछ चुका है, इसके साथ साथ UNFCCC अगेन रिपीटिशन एंड द IPCC भी पूछ चुका है। UNEP नहीं पूछा है, अगर UNEP का कोई रिपोर्ट है तो यू कैन फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड द प्रोजेक्ट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स and their effect on the environments, national water policy and water pollution control and management। अब देखोगे आप एनवायरनमेंट को GS3 में रखा है, बट द ज्योग्राफी इज इन द GS1, जबकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। एप्लीकेशन ऑफ द GS1 GS3 में अप्लाई होगा, जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है यू शुड अप्लाई इन द GS3 इन द एनवायरनमेंट। नमामि गंगे मिशन and cause a mixed result from the previous schemes, quantum leap preserve the river Ganga, that's environmental part।
current status and the target to be active renewable energy, brief importance of the national program on the light emitting diodes. एनवायरमेंट में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी फोकस करना है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चलाती है, क्योंकि टेल जो क्वेश्चन का अटैच्ड है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स है. देन द रिवर लिंकिंग एंड द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. सो द सेम क्वेश्चन द टू, ज्योग्राफी में भी एनवायरमेंट में भी. जल शक्ति अभियान एंड द वाटर सिक्योरिटी. वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली टू द कंजर्वेशन, स्पेसिफिकली टू द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव आपको लिखना होगा GS3 में. देन द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट and the initiative offered by the government for this purpose. So every question having the government schemes, national clean air programs and the initiated by the government of India. Biological diversity acts, conservation of flora and fauna, wetland conservation program and the government of India schemes. तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स एंड द वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चला हुआ है वो सब आपको आइडिया रहना चाहिए फॉर द एनवायरमेंट. देन द 3 क्वेश्चन ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. सिलेबस में बहुत बड़ा लिखा गया EIA, लेकिन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. स्टडी आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट्स. कोल फायर थर्मल प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड द मेजर सजेस्टेड फॉर द मिटिगेशंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 गवर्नमेंट एक्ट. सो बेसिकली अगर आप एनवायरमेंट देखोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है और मिटिगेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है. जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है उसको कंजर्वेशन में कैसे यूज करेंगे, दैट्स द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट पे आते हैं तो माइनिंग, द इलीगल माइनिंग्स एंड द इलीगल सैंड माइनिंग. तो दोनों सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए. माइनिंग क्या है और सैंड माइनिंग, उसको सैंड माइनिंग से रिप्लेस कर दिया गया. देन द नेक्स्ट द कंसेप्ट बेस्ड, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था. आप उस टाइम पे ही सोचोगे, इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो. Each year the large amount of plant material cellulose on the planet Earth. This is the like out of the box question के बारे में सोच भी नहीं सकता at a time. Define the concept of carrying capacity, the basics of environment. Then the green energy corridor, again the government scheme, the green energy corridor. तो उसके बारे में आपको लिखना होता है. Next पे आता है miscellaneous, disposing the huge quantity of discarded soil waste. Toxic waste means the waste management. Dramatic fall in the equipment cost and the tariff of the solar energy. Again the government schemes. कि कैसे सोलर एनर्जी कम हुई है. देन द पोल्यूशन, 1 क्वेश्चन ओनली. ऑयल पोल्यूशन, 1 क्वेश्चन इन द ज्योग्राफी, 1 क्वेश्चन इन द एनवायरमेंट फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स. एक क्वेश्चन ही पूछा गया. तो किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको फोकस करना, दैट इज द नेसेसरी इन योर मेंस प्रिपरेशन. प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा डायमेंशंस थे. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, एनवायरमेंट में ही 50 डायमेंशंस होंगे, बट इन देयर एनवायरमेंट 5 डायमेंशंस ओनली. ज्योग्राफी में ओनली द 10 to 15 डायमेंशन, नॉट मोर देन दैट. जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम हर छोटी चीज पर फोकस करते हैं, बट हियर दे आर फोकसिंग ऑन द मेजर थिंग्स जो यूज होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. एंड इन द मेंस दे आर द मोर देन रिपीटेशन ऑफ द 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ थीम्स और द सेम रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस भी है काफी सारा. तो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली.